So I'm going to continue the further classification of the builder. The last topic was the organic builders. Organic builder, the first subgroup division of the organic builder are anti-redeposition agent. Anti-redeposition agents are basically an additive that are used in detergent to help to prevent soil from resetting on a fabric after it has been removed during washing. This is basically the structure of the anti-redeposition agent non-ionic cellular ethers. Basically what happens in this, the redeposition displaced soil can be prevented by the addition of the anti-redeposition agent. The role of these agents is to be absorbed on the surface of the textile, creating a protective layer that is very useful and inhibit the redeposition of the removed soil. There is a compound CMC, which is also used in technique agent. I will tell you later. CMC that is also used in anti-redeposition center is the carboxymethyl cellulose. Has no virtually effect on the pure synthetic fiber. This is the structure I've told you, and here the R can be replaced by the methyl, ethyl, and etc. other groups. Now moving toward the thickening organic builders. Thickening agent or a thickener is a substance that can increase the viscosity of the liquid without changing their properties. This is the thickening agent. It's a definition overall. Generally, we can say that. And what actually the role of thickening agent in the organic builder is this: the CMC, the carboxymethyl cellulose, is used as a thickening agent in addition to its characteristics as a soil anti-redeposition agent. It is also act as redeposition agent and thickening agent. The other subgroup of the organic builder are optical brighteners. These are the structures of the examples of the optical brightener. Optical brightener are the organic compounds capable of converting a portion of invisible ultraviolet light into the longer wavelength having blue light. They are actually have such a stuff which can absorb the textile fibers but are easily not rinsed off, rubbed off, removed off. The reflection of the blue light makes the cloth more brighter. This is how the cloth looks more brighter than its actual yellowish form. The optical brighter actually binding occur in the optical brighteners in such a case, in the case of cotton or chlorine resistant material, through the formation of hydrogen bonds to the fiber. This is how optical fiber occur in the plays important role in the case of cotton and chlorine resistant material. The other one is chelating agent. Chelating agent, first of all, we should know that what is chelating agent. Chelating agent are basically such a chemical compound which can react with the metal ion to form a stable water-soluble complex. Complexes are formed, and these are known as chelants or chelators or chelating agent. Chelating agent can form a ring-like structure with the metal ion, allowing it to be more complex as a structure. The role of the chelating agent in the organic builder is this, as it can block the polyvalent ion and to make it undetachable and ineffective. The sodium EDTA examples of the chelating agents are EDTA and NTA. EDTA is sodium salt of ethylene diamine tetraacetic acid and हाँ NTA मरियम, are इसमें आपने वो जो ईडीटीए में एन नहीं लिखा, CH2 के आगे ना ये दूसरी साइड पे भी एन आता है। यस सर, इधर हाँ जी, वो हाथ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हाथ से लिख लें। तो वो अगर नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब है यहाँ कार्बन है, इसको भी ठीक कर लें।
So actually, I've just written it right now, so there's a mistake in it. So example of the chelating agents are EDTA and NTA. The NTA is the acronym for the nitrotriacetic acid, and these both are the members of the chelating agent. And this is the structure of the EDTA, sodium salt of EDTA, and there's also a structure of the NTA. It was quite I haven't drawn it. There are basically three main groups in chelating agents, which are NTA, DTPA. NTA is a nitriloacetic acid, aminocarboxylic acid, and DTPA is the diethylene triamine pentaacetic acid. EDTA and NTA are used in laundering formulation to chelate trivalate ions. Thus, it can prevent the iron stain in the laundering detergent. And the last one is the enzyme. There are four types of enzyme in the detergent industry. The first one is protease, second is amylose, third is lipase, fourth is cellulose. The protein basically acts on the protein. ये मरियम अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम्स में ए आता है, जैसे सेलुलोज को खाने के लिए जो एंजाइम है वो सेलुलेज है। तो सेलुलोज जो है ना, ये एंजाइम्स का नाम नहीं है। सेलुलेज करें और इधर भी अमाइलेज करें। ओके सर। सर वैसे जहाँ से मैंने ये मटेरियल लिया था वहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ था, वैसे ये बात है कि उधर आता है, ये मैं लिखती हूँ। हाँ जी, वो उन्होंने लिखते हुए थोड़ा सा मे भी इस तरह से वो बेसिकली शायद ये बताना चाहते हो कि ये सेलुलोज को खाने के लिए या उसको डिसॉल्व करने के लिए ये एंजाइम मतलब ये फंक्शन है, लेकिन बहरहाल ठीक है, आप करेक्ट कर लें यहाँ पे। Yes, sir. Proteases enzyme acts on the protein to form the amino acid. Amylase enzyme convert the starch into dextrin, and lipase enzyme attacks on the fats and oil. Cellulose enzyme basically hydrolyze the cellulose of the broken surface fibers and remove micropills from the cotton and restore color. This is all from my side. Thank you. जी मरियम, आपने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत से काफ़ी लंबी प्रेजेंटेशन थी। क्लास में सबसे लंबी प्रेजेंटेशन आपकी थी और आपने काफ़ी इंसाफ किया इसके साथ। आई एम हैप्पी विद दिस। इसमें कुछ एडिशंस हैं वो मैं आपको खुद समझा दूंगा। जैसे आपने एनायनिक सरफेक्टेंट की एग्जांपल दी, तो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट ये इसके बाद इसके जो स्ट्रक्चर्स आपने एक्सप्लेन किए उसमें थोड़ा सा था। दूसरा केटायनिक में दो तरह के होते हैं, एक तो सी टैब होता है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड उसको कहते हैं, ब्रोमीन के साथ। एक होता है क्लोरीन के साथ भी केटायनिक। अच्छा, इसमें एक और चीज थी जो आपने बताया ना कि ये एज अ सॉफ्टनर भी यूज होते हैं सरफेक्टेंट डिटर्जेंट जो हैं। ये सारे नहीं, इसमें इसमें मतलब मैं सिर्फ एडिशन करवा रहा हूँ आपकी, वो बाकी चीजें ठीक हैं। एडिशन ये है कि जो आप यूज करते हैं ना सॉफ्टनिंग के लिए, उसमें ज्यादातर एस्टर क्वार्ट्ज होते हैं और दूसरा जो क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट बेस जो है ना केटायनिक, ये ज्यादातर जो है ना एज अ सॉफ्टनर यूज होते हैं। बाकी जितनी टाइप्स हैं वो एज अ डिटर्जेंट के ही तौर पे यूज होती हैं। ये मतलब उसमें थोड़ी सी सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मुझे उसकी समझ नहीं आई एक जी पॉइंट बोलिए। की। जी बोलिए। सर यहाँ पे मरियम ने बोला था कि जो सोप है ना हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक में, और फिर इसने कहा था कि जो एसिडिक है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड में। तो ये इसकी समझ नहीं आई। नहीं, फैटी एसिड में नहीं कन्वर्ट होता, वो मैं बताता हूँ। जब आप सोप बनाते हैं ना, तो आप सोप का बेसिकली रिएक्शन है आपके फैटी एसिड और आपकी अल्कली का, ठीक है। और अपना आगे जो इसके अंदर ना ग्लिसरॉल बनता है, उसको हम फिर अलग से निकालते हैं। क्यों मरियम, आप बोली इसमें जो इसका सवाल है। सर मुझे क्वेश्चन की नहीं समझ आई। अच्छा, बोले रिपीट कर। दोबारा बोलें अपना।
यस सर। मरियम, आपने बोला था कि जो सोप है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिटिक को, तो लेकिन जब हम एसिटिक, उसके बाद आपने बोला कि जो एसिटिक है ना वो कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, तो वो किस तरह करता है? तो बेसिकली होते हैं हमारे पास, बेसिक ही होते हैं, दे कैन न्यूट्रलाइज एसिड, लेकिन when they are in acidic solution, soap are converted into fatty acid, you're right, but it doesn't ionize because they can't emulsify the oil and the dirt. They don't exhibit the detergent action. That's why. This is the reason. समझ आई है आपको? कोई नहीं आई? यस सर। समझ आई है इसने क्या कहा? यस सर, आ गई है। पक्की बात है? जो आपने बताया ना उसकी आ गई है, मरियम वाले की नहीं आई। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जब इनका रिएक्शन होता है, ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, आप ये रिएक्शन अगर आपके सामने होता ना तो आपको इसका जवाब वैसे ही मिल जाना था। तो अल्कलाइन, आप एसिड की जो पीएच होती है अल्कलाइन होती है, तो ऑब्वियसली जब आप एसिड डालेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करती है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वहां पर दोबारा ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अगर अल्कली सारी उसमें से खत्म हो जाए। तो ये है इसका बेसिक इसमें, ठीक है। तो आप रिएक्शन इसका देखें ना सोप का, मैं आपको भेजूंगा, तो फिर आपको ये अपने सवाल की ज्यादा समझ आएगी। अभी चूंकि रिएक्शन आपके सामने नहीं है इसलिए आपको लग रहा है कि ये दोनों साइडों पे ओके रिएक्शन। सर। इन अल्कलाइन कंडीशन में तो सोप बना ना। अब जो एक्सेस, अगर हम उसकी अल्कलाइन कंडीशन ना हो तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली वो फिर उसका इसका मतलब उसमें रिएक्टेंट कुछ रह गए, जो उसमें रिएक्शन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मैं अब आपको बता रहा था कि एक तो इसमें मैं एडिशन कर रहा था आपके जो इसमें, बाकी मैं आपको इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन बना के दूंगा। और दूसरा जो आपने ज्विटराइन में बीटेन है, और इसके लिए एक और भी होता है, वो होती है लेसिथीन्स होती हैं, और कोलिन भी उसको कहते हैं। तो वो भी टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी सी। इसके अलावा जो सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट में हम जो आपने माइसल फॉर्मेशन पे आया, वो एक सेल्फ असेंबल्ड एक वो सरफेस फिनोमेना, इसके लिए एक टर्म यूज होती है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं सीएमसी, ठीक है। और मैं उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आपने कवर नहीं किया था लेकिन वो बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए माइसल फॉर्मेशन के लिए, या क्रिटिकल माइसल सर्फ कंसंट्रेशन क्या होती है और वो कैसे होगा। मैं यू मीन टू से कि कौन सा जो माइसल फॉर्मेशन होती है और कैसे होती है, और इस वैल्यू की बेस पे हमें पता चलता है, ठीक है, माइसल फॉर्मेशन होगी किस शेप में होगी और कैसे होगी। सेल्फ असेंबल्ड जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है ना, ये भी थोड़ा सा आप ये समझ लें कि इसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है। एक और टर्म होती है क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर, ठीक है। इसमें हम हाइड्रोकार्बन चेन्स का वॉल्यूम और जो उसकी क्रिटिकल चेन लेंथ होती है वो, और मतलब उसकी बेस पे और एक उसका हेड जो होता है, जिसको हम ए नॉट से जाहिर करते हैं, हेड ग्रुप एरिया, ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक, एक तो होगी ना टेल, और एक उसका जो हेड होता है, उसका सरफेस एरिया, लेंथ की चेन, और हाइड्रोकार्बन चेन का वॉल्यूम, इसकी बेस पे हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं। उस वैल्यूज की बेस पे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर। उसकी वैल्यूज की बेस पे हमें सर पता ये चल। है थी, मैंने खुद ही नहीं लिखी थी, वो फिर ज्यादा वास्ट हो जाना था मेरा टॉपिक। नहीं नहीं, वो लेकिन वो थोड़ा सा इसलिए जरूरी है कि ये केमिस्ट्री है इसमें ना इन्वॉल्व। अब जैसे मैं बताता हूँ, सफेरिकल माइसल फॉर्मेशन है, पॉली डिस्पर्स सिलेंड्रिकल माइसल फॉर्मेशन है, वेसिकल्स है, ओब्लेट माइसल है, पाई लेयर है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। ये सब की सब, ये हमें पता चलता है ये माइसल फॉर्मेशन क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यूज की बेस पे हमें पता चलता है कि ये कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब यस सर। हमने माइसल फॉर्मेशन सिर्फ आपने जो बताई है वो आपने राउंड स्फेरिकल माइसल बताया, ठीक है। हालांकि ये स्फेरिकल के अलावा इसकी जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं क्रिटिकल पैकिंग, अब जब जो आपने राउंड बताया ना, उसकी जो क्रिटिकल पैकिंग शेप है ना वो कौन है,
यानी कि अगर आप एक कोन है, जैसे कर्नेटो की कोन है, अगर आप उसको आपस में जोड़ते जाएं तो वो स्फीयर बन जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप जो सिलेंड्रिकल या ग्लोबुलर माइसल फॉर्मेशन होती है, उसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्क होता है। उसमें क्या होता है, नीचे से उसका सरफेस एरिया कोन का, यानी कि जो कोन के एंड पे एक कोना बनता है, वो अगर नीचे वाला कोना थोड़ा सा फैलता जाए ना, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है माइसल का, ठीक है। और आगे से वो, और जैसे जैसे फैल, फिर एंड पे आते कोन का नीचे वाला सरफेस एरिया अगर बहुत बढ़ जाए तो वो इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका। तो वो मैं आपको, कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह से जो सरफेक्टेंट और डिटर्जेंसी का आपने बताया, इसमें जो मेन पॉइंट था वो सरफेस टेंशन, और जो इसका एक और जो होती है इसमें जो पॉइंट होता है वो होता है आपका कांटेक्ट एंगल, ठीक है। वो जरा पॉइंट था थोड़ा सा, वो भी एक्सप्लेन हो जाता था, वो चूंकि आप एफएससी लेवल का इतना ज्यादा, लेकिन वो थोड़ा सा वो भी मेरे हिसाब से हो जाए तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई नहीं। आपने खैर बहुत काफी इसमें इंफॉर्मेशन शेयर की है, जितनी माशाल्लाह अच्छी बनाई है, नो डाउट। लेकिन वही वाली बात कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और लेकिन इसको हमने कवर करना है सारे को, क्योंकि हम नेक्स्ट किसी सेमेस्टर में डिटर्जेंट, वेटिंग, सरफेक्टेंट या एमल्सिफायर को हम बार बार कोई ऐसा पॉइंट नहीं आगे डिस्कस करेंगे कि जो हमें आगे अगली क्लास में आए तो हम कहेंगे ये हमने उस वक्त नहीं पढ़ा था कोर्स में, तो आप पढ़ लें। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसके सर आप जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम इसी सेमेस्टर में इसके क्लियर कर लें, रिगार्डिंग इसकी सरफेस, इसकी स्ट्रक्चर और जो भी चीजें हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर अब प्लीज आप कुछ ना ऐड करिएगा इसके अंदर, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है। नहीं नहीं, ये बताऊं, ये है आपके सिलेबस का पार्ट है, और अगर मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा ना, तो वो आपकी चीजें इसमें मैं, ये बहुत कम्प्रीहेंसिव इसने दिया है, इस पे और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये मिनिमम पॉइंट्स हैं जो आपको समझने के लिए जरूरी है। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको माइसेल फॉर्मेशन के मैं स्ट्रक्चर्स बताऊंगा ना बना के, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज हमें क्लियर। अभी आपको माइसेल फॉर्मेशन आपने देखी है स्फेरिकल, अब स्फेरिकल में क्रिटिकल पैकिंग शेप कौन होती है, लेकिन कौन की शक्ल हर दफा नहीं होती, और ये किस बेस पे पता चलता है, ये मैंने आपको बताया क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यूज से। और वैल्यूज कैसे निकलती हैं, उस वैल्यूज की मतलब एक यूनिट होता है उसका, तो उसकी बेस पे आप कैलकुलेशन करते हैं, उसकी चेन लेंथ की बेस पे, उसकी हेड का सरफेस एरिया, उसका इन चीजों, और उसका वॉल्यूम कितना है, तो वो हम उससे ये निकालते हैं, और ये हमें जरूरी है ये समझना, ठीक है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है वो, मतलब थोड़ा सा ही ऐड होगा एक। इसके अलावा मैंने आपको बताया कॉन्टेक्ट एंगल है। अब आपको कैसे पता चला कि इसकी वेटिंग अच्छी है, तो वो कॉन्टेक्ट एंगल से पता चलता है। कॉन्टेक्ट एंगल निकालते कैसे हैं, और कॉन्टेक्ट एंगल से कैसे पता चलता है ये हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। आपकी एक सरफेस, आपने कपड़े को गीला किया है, वेटिंग एजेंट अच्छा होगा तो उसकी सरफेस टेंशन उसने रिमूव कर दी, सरफेक्टेंट का उसका जो पार्ट है। इसकी टर्मों का फर्क क्या है, सरफेक्टेंट की टर्म यूज होती है, इसका मतलब है कि ये सरफेस टेंशन रिमूव कर रहा है या उसकी सरफेस टेंशन को कम कर रहा है। अब डिटर्जेंट का जब लफ्ज आता है तो उसका मतलब है कि उसने अब सरफेक्टेंट डिटर्जेंट के तौर पे कैसे होते हैं कि सरफेक्टेंट उसकी सरफेस टेंशन कम किया, उसमें से सफाई भी की। अब सफाई कैसे की, वो ये सारा माइसल का चक्कर है। उसके बाद आप आ जाते हैं इसमें डिटर्जेंसी की तरफ, सरफेक्टेंट, वेटिंग और डिटर्जेंसी, ठीक है। इन टर्म की टेक्निकल टर्म्स का क्या फर्क है। वेटिंग का मतलब वेट करना, वेट कैसे करेगा, सरफेस टेंशन कम करके। और डिटर्जेंसी सफाई का, लाजमी नहीं जो डिटर्जेंट अपना जो सरफेक्टेंट हो वो डिटर्जेंट भी हो, वो सफाई भी करे। वो पानी को तो कर दिया, लाजमी नहीं है वो डर्ट पार्टिकल्स को भी या ऑयल पार्टिकल को भी उसमें से निकाल दे, ठीक है, काफी हद तक कर देता है। लेकिन डिटर्जेंसी के लिए एक्स्ट्रा क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको इसका क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी वेटिंग क्या होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेटिंग क्या होती है, और इसको चेक करने के लिए हम इक्विपमेंट कौन सा यूज करते हैं वेटिंग के लिए, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप से हम चेक करते हैं, उसका कॉन्टैक्ट एंगल निकालते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना, बहुत ज्यादा इसमें मैं आपको नहीं फंसा रहा, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा ही इसमें ऐड करूंगा। बाकी ये कि मरियम सर ने ये नो हर डाउट बहुत अच्छा किया जी। सर ये हर डाटा मैंने हर टॉपिक का अलग अलग बुक्स, एक नो टॉपिक डाउट, 3 3 4 बुक से लिया आई था, नो और ये आई नो ऑथेंटिक रहता है। आई नो नहीं, आपका मैंने गलत डाटा नहीं कहा, सिर्फ वो जो आपके वो एंजाइम्स के नाम थोड़े से मैंने चेंज किए हैं, वो बाकी तो आपका मैंने काफी हद तक डाटा देखा, किसी में मुझे कोई ऐसी बात नहीं नजर आई, ना मैंने उसको कहा है कि आपका अथेंटिक नहीं है। अच्छा डाटा है और किताबों से मतलब मिला है,
नेट पे वो नहीं, सीधा सीधा गूगल पे नहीं है ये सारा कुछ, आई नो वेरी वेल। तो मेरे पास भी बुक्स हैं। और मरियम को एक और अप्रिशिएट करूंगा मैं इस मामले में कि इसने मुझसे कोई हेल्प नहीं ली, मुझसे कोई बुक नहीं मांगी, मुझसे कोई मटेरियल नहीं मांगा, इसने सर्चिंग मेथड नहीं पूछा। सारी मेहनत इसकी पर्सनल मेहनत है, जो भी है इसने बेचारी ने खुद किया है, और रियली अप्रिशिएट। इसने भी खुद ही किया, और वो उसने किरण ने भी अपनी तरफ से ही सारे मेहनत की है। बाकी बच्चों ने भी, जिन्होंने, ये नहीं मैं कह रहा कि इसने हेल्प लिया तो बुरी बात है, लेकिन मैं सिर्फ वैसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इसने अपने तौर पे ये सारा मटेरियल, अच्छा मटेरियल सर्च करके ये चीज़ बनाई है। और यही आपकी ट्रेनिंग का पार्ट था कि कोई भी प्रेजेंटेशन जो आपको टॉपिक बताया जाए, उसके आप मटेरियल कैसे सर्च करना है, उसको सीक्वेंस में कैसे लेके आना है, उसकी एक शक्ल कैसे बनानी है, उसका एक कैसे उसको हाथ पांव जोड़ के एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब ये नहीं है हैपहैज़र्ड बात है, कहीं हो रही है कहीं हो रही है, उसकी एक सीक्वेंस बना के सिस्टमेटिक तरीके से हाउ टू प्रेजेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। और माशाल्लाह इसमें आप लोगों की काफ़ी, पिछले सेमेस्टर में भी अब भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस इसमें बेहतर हो रही है, और आइंदा भी मज़ीद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप बेस्ट ऑफ लक। अब वो देगी प्रेजेंटेशन, एक ही रह गई है, उम्मे हबीबा। सर अब अगली क्लास में कर ले, कान अब थक गए हैं सुन सुन के। अगली क्लास में नहीं, अभी मेरे ख्याल में कर लें, उसकी इतनी लंबी नहीं है। रेडी भी है कि नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता, उससे पूछ तो लूं। कल देर हो गया ऊपर से। सर उसकी रेडी है लेकिन उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो नहीं देगी आज। अच्छा चलो ठीक है। बस अब देखा ना, बात क्लियर हो जानी तो अच्छी होती है ना। मतलब उसने मुझे बताया नहीं है कि नहीं देनी, नाइला ने बताया था अपना, इसने मुझे बताया नहीं, इसलिए मुझे था कि शायद इसने देनी है। तो कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी फिर हम इसको सेशन को ऑफ करते हैं।